How do you see that, madam? How do you see that, sir? And what do we mean by that? What do we mean by that? We are still a slave of mind. We are still a slave. And of emotions. If you say something to me, I'll get very angry. If you say something good, I will be still very happy. Yeah? So I'm still a slave. And when we keep looking outside, we've got eyesight. Not EYE, I dash sight. All comes from the five senses, from the ego. We don't have insight. Our eyes can see outside. And while we see outside, we see each one of us behaving in the same manner that we behaved yesterday. Each one of us. आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आप खोलो और पढ़ो, और 50 साल का पहले का खोलो और पढ़ो, या 100 साल के पहले का, कोई फ़र्क नहीं होता है. वही चलता है. जो हमने आज किया वही कल किए थे, कल परसों भी वही किया था, ज़िंदगी भर वही करते हैं. लेकिन अंदर से एक चीज़ जो कहती है हम रोज़ नया कुछ कर रहे हैं. एहसास नयापन का होता है, जिसको नयापन नहीं कहा जा सकता है, एक्साइटमेंट कहा जा सकता है, जिसको मैं अपने थोड़ी यूनिक भाषा में अंदरूनी नशा कहता हूँ. वी ऑल इंटरनली intoxicated all the time, running after our desires ceaselessly. And then one day, all of this grand plan that we have for life, which doesn't materialize anyway, comes to a sudden end. Nahin? All the grand plans and everything just goes poof, and one day I am a memory, who's not mine, somebody else's. I am a photograph on the wall for some time, wo bhi, not too much, only for some time, till they keep me there. But this happens to everybody. Is somebody free from this? No. And yet this is the only thing we don't plan for. Our grand plans include everything except death. Why is this absurdity happening in our lives? Can somebody tell me? In fact, we are told not to think about death. The only certainty, the only guarantee is death. और ऐसा कैसे समाज में हम लोग जी रहे जहाँ पे सिर्फ उसकी बात नहीं होती है, बाकी हर चीज़ की बात होती है. Sex and death, two things we don't talk about, right? And both the things are very deeply linked to each other. And we keep on having sex outside, and we die one day. Our energy, we keep losing energy all the time. However dignified one may appear to be from the outside, death is not fooled by credentials. Am I clear what I just said? Death is not fooled by credentials. You may be whoever you are in this world. When death is there, you can't say आपने किसकी अथॉरिटी पे आप मेरे को लेने के लिए आए, आपका डेथ का अरेस्ट वारंट दिखाओ, आपने किस जज का साइन लिया वो लेके आओ, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो. Can you say all this? एक पल भी नहीं होता and you are gone. So all the फालतू का airs we put on every day in our lives, ये कोई काम का है really? Am I clear what I said? Airs. How do I make myself more clear? बाहर का दिखावा जो भी है, yeah? And all the time what we do is we complain. जॉइंट पेन्स और एंगर से कोई है यहाँ पे इसको गुस्सा है, बैक पेन है, जॉइंट पेन्स है? आज तो आज ज़रा कोशिश करेंगे एंगर के बारे में, डर के बारे में. कोई है यहाँ पे डर से मुक्त? तो ये सेशन उनके लिए नहीं है. हाँ, डर से कोई मुक्त होगा तो यहाँ पे मेरी बात सुन के मतलब नहीं है, प्लीज़ मत बैठिएगा. डर से कोई मुक्त है यहाँ? नहीं, सब लोग में डर है. अच्छा, तो फिर बैठे रहिए, तो कुछ काम कर सकते हैं. डर और गुस्से से अगर मुक्ति है तो यहाँ पे बैठ के मतलब नहीं है. डर और गुस्सा है, और ज़िंदगी अब तक जो चल रही है बाहर की तरफ देखते हुए दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करके उसको चेंज करने की जो हमारी ज़िंदगी भर का प्रयास चलता है, इससे कोई मुक्त है? बाहर देखते हुए किसी और व्यक्ति को बदली करने का जो कंटिन्यूस हमारी ज़िंदगी में प्रयास चलता है, इससे कोई मुक्त है?
मालूम होता है कि किसी और को हम बदली नहीं कर सकते, लेकिन हर पल बाहर की स्थिति, बाहर का व्यक्ति को बदली करने को देखते हैं। और एक दिन ये सब बड़बड़ करके वो बग करना बंद कर देते हैं। बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं, चलो चला गया, जान छूटी, नहीं? नहीं, ऐसा ही होता है ना। कितना दिन आपको याद करेगा जो भी आपके चाहने वाले हैं, मेरा बीवी बच्चा, कितना कितना याद करेगा? अच्छा, don't you think we should start preparing for death, the only certainty of our life? What do you think? I don't know what you have come here today. Huh? I think you must have come here to learn breathing. Did you come here to learn breathing? Huh? What a stupid and absurd thought. जिस चीज को हम लेकर पैदा हुए हैं उसको क्या सीखने का है? करेक्ट, टाइटल दे के आप आ गए। हाँ, ऑन डेथ अगेन। तो क्या सीखना चाहिए, ब्रीदिंग या डेथ के बारे में? जिस दिन सांस बंद होती है उसको डेथ बोलते हैं। वेरी गुड मैडम। जिस पल तक ब्रेथ चालू है, मैडम ने सही कहा, तब ही तो टाइम है डेथ के बारे में सीखने का। जब ये बंद हो जाएगी सांस तो कहाँ से सीखेंगे डेथ के बारे में? लेकिन यही एक चीज़ जो सर्टेनिटी है लाइफ की, उसके बारे में हम कभी ध्यान देते नहीं हैं। बच्चों को सब सिखाते हैं लेकिन मरना नहीं सिखाते। अपने आप को भी डर के वजह से डेथ से दूर रखते हैं। अरे वही तो सर्टेनिटी है, वही तो होने वाला है। तो क्या सीखना चाहिए ब्रेथ के बारे में? जैसा सर ने कहा, टाइटल तो वही दिया है। टाइटल देना अगर मैं शुरू कर दूं कि द आर्ट ऑफ डाइंग, all of us are trying to learn the art of living. What rubbish, childishness. Huh? The art of dying is what you to look for, right? And then only can you learn the art of living. If you know that any moment you can go, your life would be filled with more love. You will stop complaining. अगर बदली करना है अपने आप को, क्योंकि मैं ही मरने वाला हूँ, ना कि सामने की स्थिति, तो अब बदली करूँगा किसको? अब अपने आप को बदली करूँगा। अगर अपने आप को जीते हुए बदली किया, ऑब्वियसली और कोई टाइम नहीं होता बदली करने का, तो जो जीवन में मेरे जो चल रहा है, जहाँ पे झगड़ा है पति पत्नी के बीच, अगर आखिरी पल हो गया तो क्या होगा फिर? जैसे राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई, उसकी फिल्म आनंद थी, उसको पता था कि 6 महीने है जीने के लिए, तो इट्स ट्राइंग टू स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। अगर आपको पता चल गया कि आपके पास 6 मिनट है तो क्या करेंगे, राइट? बट ये बोलने अच्छा है, ये कुछ होता नहीं है। अगर मालूम पड़ेगा कि 6 महीने में मैं मरने वाला हूँ, तो वी स्टार्ट कंप्लेनिंग सम मोर। हाँ, और कुछ नहीं करते। सो एवरी मोमेंट अंदर के जो इमोशंस है, जैसा आपने पहले कहा, वी आर अ स्लेव टू अवर थॉट्स एंड आई एडेड इमोशंस टू दैट। इस स्लेवरी के बारे में कुछ करना पड़ेगा, ब्रीदिंग के बारे में कुछ करना पड़ेगा। ब्रीदिंग, बिकॉज ब्रीदिंग एंड this slavery is linked to each other, deeply linked. Breathing and death is linked to each other, very deeply linked. When you stop breathing, you die. And when you are breathing, if you notice, the way you are feeling, if you are angry, your breath will be, tell me, faster and shallow. And if you are relaxed, then your breath will be slower and deeper. Can the reverse be true? Meaning, if you are angry and suppose if you start breathing in a deeper and slower way, will the anger come down? Huh? Now if we learn how to breathe correctly, right now our emotions govern our mind and therefore they in turn govern our breathing. Can we make the system behave in such a manner that the breathing governs the mental patterns and the emotional patterns? So if the breathing is in rhythm, our mental body and our emotional body both will start thinking and emoting in a rhythmic manner. As I said earlier, we've progressed in terms of machines that we have made, but internal evolution has not happened.
5000 साल पहले भी हमको गुस्सा आने का, आज भी गुस्सा आता है, गुस्से से मुक्त नहीं है। भय जो अंदर सिस्टम में है 10,000 साल पहले या 1 करोड़ साल पहले, भय वही का वही है, मृत्यु वही की वही है। इसके बारे में कुछ सीखना चाहिए, वो आज सीखेंगे। Am I clear up till now? Are you with me? Huh? As I said earlier in my opening statement was, हम सब शारीरिक रूप से यहाँ पर है, मन यहाँ पर नहीं है। हमारे आइडियाज़ बहुत है, ये फैंटेसी में रहते हैं हम लोग। एंड अभी आप सुन रहे हैं मुझको, यू आर जस्ट इंटरनली देयर इज अ कंपैरिजन हैपनिंग, देयर इज एन इवैल्यूएशन हैपनिंग, हाँ ये सही है या ये गलत है। एम आई क्लियर? कोई बेस नहीं है हमारे नॉलेज का। हम सब पृथ्वी के ऊपर जितनी नॉलेज किसी और के पास है उतनी किसी और के पास है। नो टू इंडिविजुअल्स में से वन इंडिविजुअल इज मोर स्पेशल इन सम वे बिकॉज ही इज गॉट सम डीपर नॉलेज, बेटर स्किल, मोर टैलेंट, इज मोर स्मार्टर। ऑल द स्मार्टनेस कम्स टू एन एंड फॉर एवरीबडी। दैट्स वेरी क्लियर, नो? हाँ, तो यहाँ पे बैठ के जब हम मन में वी स्टार्ट थिंकिंग, हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, what's the base of that evaluation of that judgment? None. Like monkeys ये बग 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 करते हैं, गुलाटी खाते रहते हैं। Let's do something about the monkey business that we are always into. हाँ? अगर ये इसको कुछ कर लिया, ये monkeying around को, which we all live life in, this monkeying around, we'll do something about life itself, something about death itself. What keeps us enslaved are our attitudes, our emotional attitudes. And most of it has to do with our over smartness. Most of it is our over smartness and comes from fear. अंदर चिंता होती है कि somebody else will look smarter than me. So we all trying to be competitive. This is clear or not clear? हाँ, कोई बोलेगा नहीं, बाहर से होशियारी मारते हैं। होशियारी वर्ड समझते हैं? ओवर स्मार्टनेस को हमारी बम्बैया लैंग्वेज में होशियारी कहते हैं। हाँ, बाहर से होशियारी बहुत, अंदर से तो बहुत डर। और ये डर, जितना डर बढ़ता है उतनी होशियारी बढ़ती है। इट्स अ मेरी गो राउंड। कुछ नहीं कर पाते हम उसके बारे में। तो क्या करेंगे? ब्रीदिंग के बारे में सीखेंगे तो कुछ डेथ के बारे में हो जाएगा। डेथ के बारे में अगर पकड़ में आ गया तो लाइफ के बारे में आएगा। लाइफ के बारे में रियली पकड़ना है तो अपने आप को डिफरेंट समझ के चलेगा नहीं। अपने आप द ओवर स्मार्टनेस, व्हाट वी कॉल the ego in normal terms, ego will dissolve. If the ego dissolves, then I'm part of the ocean, then there is no differentiation, न मैं न तुम, कोई अलग नहीं। अगर मैं और तुम का एहसास खत्म हो गया तो that will be oneness. oneness को शास्त्र में मोक्ष कहते हैं। Understand? It's just that I'm taking a very logical